Very good morning, all of you. Today I am going to start chapter 9, sequences and series, exercise 9.1, class 11. Related visuals for series AP, GP, HP, AGP, and etc. may be also prepared after these videos for the JEE Main and Advanced. If you are interested, then may you also see, because in that videos the theory and concepts would be explained in detail, but a bit theory or concepts would be explained in the given 9.1 is a bit short. Let's proceed. Write the first 5 terms of each of the sequences in this. वैसे what is sequence? Sequence क्या होता है? अगर हम ध्यान से देखें, a group of numbers which are related to each other by any rule and the domain of that function, that is also called function. Sequence is a function of natural number. So sequence is a group of numbers which are related to each other by a rule. That rule is written in form of formula, such that here is the formula, and this is also called function because this is totally depends on the natural number. So the sequence is the function of natural number. Let's proceed. And this, write the first 5 terms of each of the sequences in exercises 1 to 6 whose n terms are given. तो nth टर्म गिवन में है, तो ये सीक्वेंस है, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू सीधे निकाल सकते हैं. a n इज इक्वल टू n plus 2. This is the sequence, means this relation is related to each other only natural number. You can see, if you take 1 for n is equal to n, then you find natural number. For example, for n is equal to 1, first term a1 is equal to 1 into 1 plus 2 is equal to 1 into 3 is equal to 3. ये 3 ही होगा. ये जो है मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये 3. ये फर्स्ट टर्म क्या आ गया, 3. फॉर n is equal to 2, दिस इज द सेकेंड टर्म, तो a2 is equal to 2 into 2 plus 2 is equal to 2 into 4, 2 to 4, 4 to 8. ये डॉट जो है मल्टीप्लाई का साइन है. फॉर n is equal to 3, a3 is equal to 3 into 3 plus 2 means 3 into 3 to 5, 5 3 is 15. For n is equal to 4, a4 is equal to 4 into 4 plus 2 is equal to 4 into 6, 6 4 is 24. And for is n is equal to 5, a5 is equal to 5 into 5 plus 2 is equal to 5 into 7 is equal to 7 5 is 35. तो इस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं. देखिए ये 5 टर्म्स है, इनका आंसर 3 8 15 24 35. तो फर्स्ट 5 टर्म्स, इसके आंसर जो है, फर्स्ट 5 terms are, इसको हम
लिख सकते हैं 3, 8, 15, 24 and 35. This is done. Next question is a n is equal to n by n plus 1. तो 5 terms we can write directly. A1, A2, A3, A4 and A5. A1 means n की वैल्यू 1 रख दिया है, तो 1 by 1 plus 1. 2 by 2 plus 1. 3 by 3 plus 1. 4 by 4 plus 1 and 5 by 5 plus 1 is equal to, ये हो जाएगा 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4, 4 by 5 and 5 by 6. ये हमारे 5 टर्म्स हो गए. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. 5 terms are A1, A2, A3, A4, A5, A1, comma, and this is also. A1 means 2 की पावर an is equal to 2 की पावर, यहां पर हम लिखेंगे 2 की पावर 1, इधर 2 की पावर 2, इधर 2 की पावर 3, इधर 2 की पावर 4, इधर 2 की पावर 5. मीन्स हमारा हो गया 2, 4, 8, 16, 32. ये आपका आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4th में ठीक फिर 5 terms are A1, A2, A3, A4 and A5. तो इसकी वैल्यू 2 multiply 1 minus 3 by 6. 2 multiply 2 minus 3 by 6. 2 multiply 3 minus 3 by 6. 2 multiply 4 minus 3 by 6. 2 multiply 5 minus 3 by 6. इसका आंसर 2 minus 3 by 6, 4 minus 3 by 6, 6 minus 3 by 6, 8 minus 3 by 6 and 10 minus 3 by 6. आंसर -1 by 6 और 1 by 6, 3 by 6 और 5 by 6 और 7 by 6. तो ये जो है ये हो गया -1 by 6 माइनस प्लस 1 by 6, 1 by 2. इसको हम 1 by 2 भी लिख सकते हैं. आप अगर इसको काट सकते हैं, इसको 1 by 2 भी कर सकते हैं. तो हमारा -1 by 6, 1 by 6 और 1 by 2 और 5 by 6 और 7 by 6. तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं. दिस इज द 5th question.
5 terms are 5 terms are A1, A2, A3, A4, A5। बस वैल्यू रख दीजिए। इसमें -1 की 1 - 1 इंटू 5 की 1 + 1, कॉमा -1 की 2 - 1 इंटू 5 की 2 + 1। 3 के लिए -1 की पावर 3 - 1 इंटू 5 की 3 + 1। 4 के लिए -1 की पावर 4 - 1 इंटू 5 की 4 + 1। इसी तरह से अगला वाला भी है टर्म -1 की 5 - 1 इंटू 5 की 5 + 1। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1 की पावर 0 इंटू 5 की 2। दूसरे टर्म में -1 की पावर 1 इंटू 5 की 3। तीसरे में आएगी -1 की पावर 2 इंटू 5 की 4। 4 में आएगी -1 की पावर 3 इंटू 5 की 5। और फिफ्थ में आएगी -1 की पावर 4 - 5 - 1 4 और इंटू 5 की 6। अब इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। मल्टीप्लाई करने पर जो भी आए, तो किसी भी डिजिट हो या इंटीजर हो, इसकी अगर पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो ये 1 इंटू 5 का स्क्वायर यानी 25। फिर यहाँ पर -1 का 1 तो माइनस आएगा, -5 5 जा 25, 5 जा 125। क्लियर। -1 का इवन नंबर है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 1 इंटू 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625। ये मल्टीप्लाई है। फिर -1 फिर ओड नंबर में तो माइनस ही आएगा, इंटू 5 को 5 बार गुणा करेंगे तो इसमें 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, 2 12, 5 × 30, 1 31। ये मल्टीप्लाई का साइन है। और फिर यहाँ -1 की 4 फिर प्लस का हो गया तो कोई मतलब नहीं है, आप लिखे चाहे ना लिखे। और 5 को 6 बार, तो 5 को यहाँ फिर बार गुणा कर दिया तो 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, 2 12, 5 × 5 = 6, 5 × 3 = 15। ये आपका हो गया और वो भी पॉजिटिव आएगा। तो हमारे पास लास्ट में क्या आ गया, 25 - 125 और प्लस 625 और -3125 और प्लस 15625। ये अपना नंबर हो गया। 25 125 -125 प्लस 3125 और 15625। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। इसी को हम आंसर बोल सकते हैं। 5 टर्म्स हो गए ये। 6 क्वेश्चन देखते हैं। 5 टर्म्स आर, क्या लिखे, A1, A2, A3, A4, A5। तो A1 का मतलब हुआ कि 1 इंटू n, ऊपर ही लिखा है n इंटू, ये असल में यूं है n इंटू n² + 5/4, यूं है ये। ठीक है, तो इसको देखेंगे 1 इंटू
1 का स्क्वायर प्लस 5/4। इसका फिर देखेंगे 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5/4। फिर इसके लिए 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5/4 और 4 का स्क्वायर प्लस 5/4। फिर 5 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 5/4। इसकी वैल्यू 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1 यानी 6/4। ये मल्टीप्लाई का साइन है, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर 2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 5 4 9, 9/4। फिर ये वाला 3 3 जा 9 5 14, 14 3 जा 42/4। 3 जा 9, 5 14, 14 2 28, 14 3 42। फिर 4 4 जा 16, 5 21, 21 1 4 जा 84/4। फिर इसी तरह से 5 5 जा 25, 30, 35 जा 150/4 यानी 5 5 25, 5 30, 30 5 150। तो ये आपका कटता है तो काट दीजिए 3/2। देखिए 3 इधर 2 से कट गया। ये किसी से कटेगा 2 1 जा 2 2 जा, इसको किसी से 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, इसको 4 2 जा 4 1 जा और 4 1 जा। फिर इसको 2 7 जा 2 5 जा /2। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2, इसको लिख सकते हैं 9/2, इसको लिख सकते हैं 21/2, इसको लिख सकते हैं 21/1, इसको लिख सकते हैं कट गया था ये, तो ये 75/2, ये 3/2, तो ये अपना आ गया 3/2, 9/2, 21/2, 21 75/2 करेक्ट। ठीक। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइज 7 to 10 whose nth term is given। इसमें थोड़ा सा दिमाग भी लगाएंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगेगा कि हमारे पास जो जो दिया है पहले उसको ध्यान से देखें। हमारे पास क्या दिया हुआ है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स, nth टर्म दिया है, वेरी सिंपल, an इक्वल टू 4n minus 3 मीन्स 4 मल्टीप्लाई n minus 3। इसमें वैल्यू रखनी है तो इसमें 17, तो a17 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 17 minus 3। इसका क्या हो जाएगा 68 minus 3 इज इक्वल टू 65। a24 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 24 minus 3, 96, 96 minus 3 इज इक्वल टू 93। तो ये हो गया। अब इसके बाद भी क्या है, इसमें 7th टर्म ज्ञात करना है, तो a की n इक्वल टू n स्क्वायर बाई 2 की पावर n, ये दिया है a की 7, तो a की 7, तो 7 का स्क्वायर बाई 2 की 7 मीन्स 7 7 जब 49 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 2 32 64 128 128। ये आ गया अपना। ये सब सीक्वेंस है, इसमें भी हमें यही करना है। n हमारे पास गिवन में है, -1 की पावर n-1 इंटू
इंटू का मतलब मल्टीप्लाई, n की क्यूब। अब हमें n इक्वल टू 9 पूछ रहा है, तो यहाँ पर a की 9 लिख दीजिए, बस n की जगह 9 लिख दो जहाँ जहाँ है। तो -1 की पावर 9 - 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर 3, तो देखिए -1 की पावर 8 मल्टीप्लाई 9 9 9। अब चूंकि -1 की पावर इवन है तो इसको हम 8 बार मल्टीप्लाई करें तो भी प्लस का ही आएगा, तो ये तो खत्म हो गया। तो ये आया 9 9 जा 81 और 9 1 जा 9 8 जा 72, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद ये 10th वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो n इक्वल टू n मल्टीप्लाई n - 2 बाई n + 3, हमें n इक्वल टू 20, n की जगह पर 20 लिखना है। तो a20 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 20 - 2 बाई 20 + 3 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 18 बाई 23 इज इक्वल टू 18 2 जा 32 36, देखो 18 2 जा 36 और एक जीरो यहाँ पर बढ़ा दिया बाई 23। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद 11th क्वेश्चन, 11 के बाद 13 14, ठीक है, 11 12 13, a1 a3 दिया है, फॉर ऑल इज ग्रेटर देन 0, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स। देखिए 5 टर्म, फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू 3, a2 इज इक्वल टू 3 इंटू a की 2 - 1, देखिए n की जगह पर हमें 2 लिखना है यहाँ पर, तो 2 - 1 प्लस 2। अब इसको हम जरा ध्यान से देखें, 3 इंटू 8 2 की पावर 1 में से, तो यहाँ पर a की 1 बचा प्लस 2, लेकिन a की 1 की वैल्यू तो दी है 3, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 यानी 11, ये आपका फर्स्ट टर्म आ गया। थर्ड टर्म तो 3 इंटू a की 3 - 1 प्लस 2। अब आप देख लीजिए कि 3 इंटू a की क्या हो गया, इधर 2 हो गया प्लस 2। अब एक 2 की वैल्यू हमारे पास ये 11 है, हम इसमें 11 रख सकते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 11 प्लस 2 यानी 11 3 जा 33 और 2 35, ये आपका थर्ड टर्म हो गया। फोर्थ टर्म 3 इंटू a की 4 - 1 प्लस 2। अब आप देखिए 3 इंटू a की 3 प्लस 2। अब क्या करेंगे, 3 इंटू a की 3 की वैल्यू क्या है 35, तो 35 प्लस 2, और यहां पर 35 3 जा 105, तो 107 हो गया। 35 था 105 और 2 107, ठीक है। a की 5 इक्वल टू 3 इंटू a की 5 - 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 इंटू a की 4 प्लस 2 इक्वल टू 3 इंटू a की 4 की वैल्यू देखिए यही है 107 प्लस 2, तो ये आएगा 3 7 21 3 एकम 3, 3 7 21 3 एकम 3, 321 प्लस 2 यानी 323, ये आंसर आ गया। 5 टर्म तक शायद यही लिखने थे, ठीक है, यहीं तक लिखना था। अगला देखते हैं, इसका भी 5 टर्म्स हमें लिखना है। तो a1 तो हमारे पास है ही है, a1 इक्वल टू -1, a2 इक्वल टू
ए की 2 माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू ए की 1 बाई 2 इज इक्वल टू ए की 1 की वैल्यू -1 है, यहां लिख दें -1 बाई 2। ठीक है, 12th का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके बाद फिर ए की 3, तो ए की 3 माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू ए की 2 बाई 2। अब ए की 2 की वैल्यू तो -1 बाई 2 है, तो -1 बाई 2 बाई 2 बाई 1 करके उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो। -1 बाई 2 मल्टीप्लाई 1 ऊपर और 2 नीचे, तो -1 बाई 4। ए की 2 ए की 3, अच्छा यहां 3 नहीं लिखा, सॉरी यहां पर 3 लिखना था हमें, कोई बात नहीं है, यहां पर 3 लिखना था क्योंकि थर्ड टर्म है। यहां पर ए की 2 बाई 3, तो ए की 2 की वैल्यू -1 बाई 2 बाई 3 बाई 1, तो -1 बाई 2 मल्टीप्लाई 1 ऊपर 3 नीचे इक्वल टू -1 बाई 6। ए की 4, ए की 4 माइनस 1 बाई 4 इज इक्वल टू ए की 3 बाई 4। ए की 3 की वैल्यू -1 बाई 6 की बाई 4 बाई 1 उल्टा करके मल्टीप्लाई -1 बाई 6 मल्टीप्लाई 1 ऊपर 4 नीचे -1 बाई 24। ए की 5 इज इक्वल टू, तो ए की 5 माइनस 1 बाई 5 इज इक्वल टू ए की 4 माइनस 1 बाई 5। ए की 4 की वैल्यू अपने पास -1 बाई 24 बाई 5 इज इक्वल टू -1 बाई 24, इसके बाई 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई 5, तो -1 बाई 120, ये हो गया। अब इसके बाद 13 और 14, देखिए इसकी हमें सीरीज भी बनानी थी, तो एक्चुअली आई हैव फॉरगेटन इट। सो सीरीज में आप क्या करोगे, इनके बीच में प्लस लगा दोगे बस, तो क्या आ जाएगा 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323, ये आप ऐसे लिख सकते हैं सीरीज में। ये भूल गया था मैं, तो आप इसको लिख सकते हैं, सीरीज में लिखना था तो आप इसको लिख सकते हैं सीरीज में। तो सीरीज -1 प्लस -1 बाई 2 प्लस -1 बाई 6 प्लस -124 प्लस -1 बाई 120, आप ऐसे लिख सकते हैं, प्लस इसी तरह से और भी। तो अब ये 13 नंबर क्वेश्चन है, इसमें तो कर ही लेंगे। अब आप देखिए A1 हमारे पास गिवन में है, A1 इज इक्वल टू 2, A2 इज इक्वल टू 2, A3 इज इक्वल टू A की 3 माइनस 1 इज इक्वल टू A की 2 माइनस 1, तो A की 2 की वैल्यू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। A की 4 इज इक्वल टू 13 में n इज इक्वल टू कितना दिया है 1 2 3 4 5, तो ये हमें इतने तक लिख सकते हैं। A की 4 लिखें तो A की 4 माइनस 1 इज इक्वल टू A की 3 माइनस 1। A की 3 की वैल्यू हमने ये निकाली हुई है 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। A की 5 इज इक्वल टू A की 5 माइनस 1 इज इक्वल टू A की 4 माइनस 1 इज इक्वल टू
ए की 4 की वैल्यू 0 माइनस 1 इक्वल टू -1। ए की 6 भी हम लिख सकते हैं, 5 तक ही है तो ठीक है, नहीं तो 6 भी लिख सकते हैं। तो इसकी सीरीज क्या बनेगी, सीरीज को प्लस में लगा देते हैं तो सीरीज बन जाती है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस -1, ये सीरीज बन गई अपनी। अब इसके बाद भी हो सकता है। अब आप इसका लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कितना 1 2 3 4 5। तो देखिए हमें क्या करना है, a1 इज इक्वल टू गिवन में है, a1 इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू 1, और अब हमें ये ज्ञात करना है। तो an इज इक्वल टू, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए a इज इक्वल टू a की n-1 प्लस a की n-2। तो a की 1 के लिए क्या हो जाएगा, a की 1 इज इक्वल टू a की, यहाँ पर a की 2 तो है ही है, 3 लेंगे हम, यहाँ पर 3 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 ले दिया, तो a की 3-1 प्लस a की 3-2 इज इक्वल टू a की 2 प्लस a की 1 इज इक्वल टू a की 2 की वैल्यू और a की 1 की वैल्यू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब इसके बाद a की 4 इज इक्वल टू a की 4-1 प्लस a की 4-2 इज इक्वल टू a की 3 प्लस a की 2 इज इक्वल टू a की 3 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस a की 2 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 3। a की 5 यानी n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू यहाँ लिया 4 और n इज इक्वल टू यहाँ लिया 5। तो a की 5-1 प्लस a की 5-2 इज इक्वल टू a की 4 प्लस a की 4 यहाँ 3, a की 3 आएगा इधर। तो a की 4 की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की 4 की वैल्यू 3 है, प्लस a की 3 की वैल्यू क्या है 2 है, यानी 5। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास क्या चाहिए, फाइंड a की n+1/n फॉर n इज इक्वल टू दिस। तो हमारे पास अब नाउ देखिए इसको कैसे लिखेंगे, फाइंड a की 1+1/a की 1 इज इक्वल टू a की 2/a की 1। अब a की 2 क्या है हमारे पास 1, बाई a की 1 क्या है हमारे पास 1, इक्वल टू 1 आ गया। अब a की 2+1, n इक्वल टू हमने यहाँ पर 1 लिया, n इक्वल टू यहाँ पर हमने 2 लिया, तो a की 2+1/a की 2 इज इक्वल टू a की 3/a की 2 इज इक्वल टू a की 3 की वैल्यू हमारे पास 2/a की 2 की वैल्यू हमारे पास 1 यानी 2। n इक्वल टू 3 लिया, अब हमने n इक्वल टू 3 लिया हमने, तो क्या हो जाएगा a की 3+1 बाई a की 3 इज इक्वल टू a की 4/a की 3। अब a की 4 हमें कहाँ से मिलेगा, a की 4 हमने निकाला हुआ है, तो यहाँ पर 3/2। अब हमारे पास a की n इक्वल टू 4 लें, तो क्या आएगा a की 4+1 बाई a की 4 इज इक्वल टू a की 5/a की 4। a की 5 हमारे पास क्या है 5 और a की 4 हमारे पास क्या है 3, 5/3।
अब इसके बाद अगला टर्न यहां लिख देते हैं, और n इक्वल टू 5 अगर हम लिखते हैं तो क्या आएगा, a की 5 प्लस 1 बाई a की 5 इज इक्वल टू a की 6 बाई a की 5 इज इक्वल टू a की 6 हमारे पास क्या है, a की 6 हमारे पास, इसमें हम a की 6 भी लिख सकते हैं, तो a की 6 भी निकाल लेते हैं इसी में, यहाँ a की 6 भी निकाल लेते हैं, a की n इक्वल टू 6 में a की 6 इक्वल टू a की 6 माइनस 1 प्लस a की 6 माइनस 2 इक्वल टू a की 5 प्लस a की 4 इक्वल टू a की 5 हमारे पास 5 है, a की 4 हमारे पास 3 है, तो यानी 8, तो हमारे पास a की 6 क्या हो गया, 8 हो गया, बाई a की 5 क्या हो गया, 5 हो गया, तो 8 बाई 5। तो हमारी सीरीज क्या बन गई, सीरीज हमारी बन गई, या सीरीज लिखने की जरूरत नहीं। द टर्म्स आर कौन कौन से, 1 2 3 बाई 2 5 बाई 3 और 8 बाई 5 और ऐसे चलेगा। Thank you very much. I have completed one exercise, and next exercise will be, next question will be in next video. Thank you very much. Please, you are all requested to subscribe, like and share, and spread this knowledge among your friends, family, colleagues, classmates, etc. Thank you very much again.